Welcome back students to my channel Simplified Maths. दोस्तों we are continuing with exercise 9.5 in of the chapter 9 differential equation. In today's particular lecture we will do few more sums from exercise 9.5. Last time we have just started the exercise, just one sum was done. As I told you that these sums are little bit lengthy, so in a 30 minutes lecture it is not possible to cover more than 2 or maximum 3 sums, not even 3. Okay, but we will just try the methods, different types of sums, and the remaining you can try at your own. So last time जो हमने sum किया था वो that was a homogeneous differential equation in which we substitute y upon x is equal to v. That was the first sum. Now I will take one more sum which is of the type x upon y. Okay, suppose you just now before I go for that, let me take you to one more hint of the y upon x type sum, and then I will go for x upon y type. 7 sum, जो सम देखो तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे कि भाई इतना लंबा, लेकिन एक्चुअली इट इज़ लाइक दिस x cos y upon x plus y sin y upon x, okay, bracket over into y dx is equal to, again a bracket, y sin y upon x minus x cos y upon x bracket over into x dy. Okay, the sums looks little long, no? But first of all what we will do is, one thing is clear, there is a y upon x already, so we have to convert into y upon x only, no x upon y, वो तो clear है. तो अभी इसमें से whenever there is a y upon x then you always form dy by dx. तो see this side is dx will go to the other side, तो वो dy upon dx हो जाएगा. Now this is y and this is x, so that x will means this whole thing of the right hand side I will take on the left hand side in the denominator. So क्या हो जाएगा देखो, हाँ यहाँ पे dx जो है उस तरफ चला जाएगा, सो क्या हो जाएगा dy by dx. मैंने पहले क्या लिखा, ये dy by dx now is equal to, now this bracket into y divided by this bracket into x. ठीक है, सो ये पूरा हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे, x cos y by x plus y sin y by x bracket over into y divided by this whole thing, that is y sin, okay, y by x minus x cos y by x bracket over and into x. ठीक है, now if you see it properly दोस्तों, तो यहाँ पर y upon x ही आ गया एक्चुअली, है ना, y upon x, right? So now you no need to write that y upon x. हम डायरेक्टली क्या करेंगे, now this is a homogeneous differential equation, just you can no need to even write, we just start with a substituting. What substitute? Y upon x is equal to v, means y is equal to vx. ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे रखना होगा और y is equal to vx भी यहाँ पे रखना होगा, right? And then I will leave it to you. I am not going to do the full sum. Okay, so it is dy by dx, इसका डेरिवेटिव करोगे, so dy by dx is equal to v plus x dv by dx. Okay, multiplication rule, and now this will be replaced here at dy by dx. ठीक है, and so हमारा गिवन इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन इज, तो dy by dx के बदले ये लिख देंगे हम. ठीक है, सो इट विल बी
v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब जहाँ पर x है वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, x को x ही रखो न्यूमरेटर में, x कॉस v प्लस y जो है तो y के बदले vx लिख दो, y इज इक्वल टू vx, सो vx साइन v, ओके, ब्रैकेट ओवर और into what there y, so again that y will be written as vx divided by, okay, here is a y, so y को क्या लिखोगे, vx sin v minus x will be x only, x cos v bracket over x. Okay friends, now what's your observation, यहाँ से आप देखो ये x और ये x तो कट हो गया. One more thing, from this bracket if you see properly there is a x cos v and vx sin v, so again x common, you can take it out. From the denominator also यहाँ से x और यहाँ से x, that also you can take common. So from numerator and denominator what is common, x, कॉमन कॉमन कट हो गया, तो वो फाइनली क्या आएगा हमारा, therefore is equal to, आफ्टर टेकिंग आउट कॉमन, राइट, तो इट विल बी ब्रैकेट में होगा cos v प्लस v sin v ब्रैकेट ओवर इंटू v इज ऑलरेडी देयर डिवाइडेड बाय, यहाँ से ब्रैकेट के बाहर का x तो निकल गया है, दूसरा जो x कॉमन निकला वो भी कट हो गया है. सो नाउ इन द डिनोमिनेटर नो नीड टू राइट द ब्रैकेट, सो इट विल बी v sin v, ओके, माइनस कॉस v. ठीक है, ये हमारा है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. ठीक है, नाउ व्हाट, open this bracket and this v also you have to take on this side, because you know last time I told you that once you put the y upon x equal to v, and our purpose to do this substitution is to convert the homogeneous differential equation into the variable separable method. अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, v वन साइड x अनदर साइड. ठीक है, राइट. तो अभी मैं बाकी का काम आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग इट. इट विल बी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इट विल बी वी कॉस वी प्लस वी स्क्वेयर साइन वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी एंड माइनस वी, ये साइड जो v था ना, दिस साइड v, दिस साइड भी आई हैव टेकन ऑन द अदर साइड. ठीक है, अब आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो भी ऊपर न्यूमरेटर में देयर विल बी समथिंग कैंसल आउट, यू जस्ट गेट इट कैंसल. आफ्टर कैंसलिंग आउट जो भी बचता है वो पूरा डीवी के साथ लाएंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और राइट हैंड साइड में जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स. एंड लास्ट लेक्चर में शायद मैंने आपको समझाया था, इफ़ यू रिकॉल, कि इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑलवेज राइट हैंड साइड विल बी डी एक्स अपॉन एक्स. देखो ये लास्ट लेक्चर मेरा यहीं पे है, इसमें मैंने ये लिखा था कि द आर एच एस इज ऑलवेज दिस टाइप इफ v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स. हमने रिप्लेस किया हो तो ये ही आता है ऑलवेज, और लेफ्ट साइड में फिर जो भी आएगा लेट इट बी, ओके, एंड देन रिमेनिंग यू हैव टू फिनिश इन द होमवर्क. आपको फिर इंटीग्रेशन जितना भी आता हो, इट इज़ अप टू यू. इफ़ यू डोंट नो द इंटीग्रेशन देन इट विल बी अ डिफिकल्ट वन टू सॉल्व. ठीक है, राइट. अभी देखो यहाँ से शुरू किया यहाँ तक में, अभी तो इंटीग्रेशन शुरू भी नहीं हुआ है, इजंट इट. सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि होमोजीनियस वाले सम्स जो है ना वो मिनिमम 3 मार्कर्स में तो आएंगे ही, 2 मार्कर्स में देयर इज़ नो चांस. ओके, राइट. अभी वन मोर सम आई विल डू विच इज ऑफ द टाइप x अपॉन y. ठीक है, x अपॉन y वाला जो है वो देखो कि सम नंबर 10, द सम इज गिवन लाइक दिस, 1 प्लस e रेज टू x अपॉन y
into dx plus e raised to x upon y into 1 minus x upon y is equal to 0. Okay, dy is there, sorry, dy is equal to 0. Okay, so now see, when there is a x upon y type given, already x upon y which you cannot write convert into y upon x, so ये पूरा मैं x upon y में ही convert करूँगा, तो मैं I will not write now dy by dx but I will put now dx by dy. That is very important here. Okay, so क्या करेंगे हम, dx by dy करना होगा, so 1 plus e raised to x upon y dx is equal to, ये पूरी टर्म को सामने ले जाओ, सो माइनस e raised to x upon y 1 minus x upon y dy. ठीक है, अब dy विल कम दिस साइड, dx अपॉन dy बनाएंगे हम. ठीक है, एंड देयरफॉर dx upon dy is equal to, so now this term is as it is. One more thing I can do is कि ये माइनस को अंदर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, here in the bracket you can interchange the terms, so माइनस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. So I will write it as e raised to x upon y into bracket x upon y minus 1 and upon this term, that is 1 plus e raised to x upon y. ठीक है, अब पूरा फॉर्म x अपॉन y में कन्वर्ट हो गया. ठीक है दोस्तों, सो नाउ आई विल एज्यूम, व्हाट आई विल एज्यूम नाउ, x अपॉन y इक्वल टू v. हम क्या सपोज करेंगे, कि भाई लेट x अपॉन y इज इक्वल टू v. ठीक है, ये हम पूरा एज्यूम कर लेंगे. अच्छा, वन मोर थिंग दोस्तों, आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू, here also in the previous sum also I have not shown that it's a homogeneous equation as told in the textbook exercise. एक्चुअल में है ना, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के हिसाब से आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसको वो होमोजीनियस फंक्शन में इसको बताना पड़ता है, 0 डिग्री वाला है ना. तो वो एक्चुअली मैंने नहीं किया, मैंने सीधा स्टार्ट कर दिया, बिकॉज एज पर एज माई एक्सपीरियंस एग्ज़ाम में जो है ना दोस्तों, वो लोग वो होमोजीनियस फंक्शन का एमसीक्यू पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर तो वो नहीं पूछते. यहाँ पर खाली ये क्या पूछेंगे, जस्ट सॉल्व. सो अगर सॉल्व करने का पूछते हैं तो फिर वो सब वो होमोजीनियस शो करने का आता नहीं है. सो इसलिए मैंने शो नहीं किया, मैंने डायरेक्ट स्टार्ट किया हुआ है. सो जस्ट बी केयरफुल. ठीक है, इवन इन दिस सम ऑल्सो. ठीक है ना, यहाँ पर भी एक्चुअल में ये आपको वो 0 डिग्री वाला x अपॉन y के फॉर्म में शो करना पड़ता है. बट वेट ऑल्सो आई एम नॉट शोइंग, आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग द प्रॉब्लम. सो x अपॉन y इज इक्वल टू v सपोज किया, मतलब x इज इक्वल टू क्या हुआ, vy हुआ, और उसका आप क्या करोगे, आप डेरिवेटिव. तो बी केयरफुल नाउ, dx by dy आई वॉन्ट. ओके, सो इसको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y. जस्ट बी केयरफुल, विथ रिस्पेक्ट टू y प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, सो v इंटू, नाउ y विल बी 1 बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू y it is not dy by dx, be careful, plus y as it is into derivative of v will be dv by dy. Okay, we have differentiated both side with respect to what, y. This is very important thing. ठीक है, ओके. अब ये जो हमारा dx by dy है वो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे. ठीक है, एंड सो यू कैन से that the given equation is, ठीक है, तो instead of dx by dy ये रख दो, so v plus y dv by dy is equal to e raised to v into bracket v minus 1 upon 1 plus v.
होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप. ओके, अभी ये v जो है v विल टेक ऑन द अदर साइड, सो इट विल बी y dv by dy, y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम, सो इट विल बी v ई रेज टू वी माइनस ई रेज टू वी, ठीक है, अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी. दिस v is taken on that side. ठीक है. Now you just see properly that again we are come to the variable separable method, but now the variables are v and y. In the previous two sums the two separate variable were x and v and x. यहाँ पर v and x नहीं है लेकिन v and y है, because our substitution is x upon y equal to v. So x को हमने vy बनाया हुआ है, so x एलिमिनेट हो गया है. ठीक है, राइट. अभी इसको आप एलसीएम ले लो. यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, v ई रेज टू वी माइनस ई रेज टू वी, फिर यहाँ से एलसीएम लेंगे तो माइनस वी, एंड इट विल बी माइनस वी स्क्वायर. ठीक है, माइनस वी स्क्वायर. होप यू आर क्लियर अबाउट दिस थिंग. ठीक है, राइट. अभी once you all what we say take an LCM, 1 plus v is the denominator, y dv by dy. Now see that dv is in the numerator, तो ये पूरा टर्म जो है ना वो हम इस तरफ dv के साथ ले आएंगे. ओके, एंड सो क्या होगा, ये 1 plus v will go in the numerator, 1 plus v upon this whole thing, that is v e raised to v minus e raised to v minus v square dv is equal to, और अभी यहाँ से क्या हुआ, ये dy upon y. यहाँ पे देखा what is in the RHS, dy upon y. Can you see that? Okay, right. Now see व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन दोस्तों. आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो. आई थिंक मेरा कोई ना कोई गलती हो रहा है. जस्ट वेट अ मिनट. यस आई गॉट द मिस्टेक. एक्चुअली ये मैंने 1 प्लस वी लिखा, वो तो ई रेज टू वी है ना, राइट. सो इट इज ई रेज टू वी. यहाँ पर भी ई रेज टू वी. ठीक है, अभी e raised to v is there, so it will not v square but it will be v e raised to v, बराबर. और ये भी e raised to v. तो e raised to v जहाँ जहाँ पर था वो मैंने रिप्लेस कर दिया, करेक्शन कर दिया. ओके, थैंक गॉड कि नहीं तो मुझे पूरा फिर से ये करना पड़ता वीडियो मर्जिंग. सो यहाँ से मुझे स्ट्राइक हुआ दोस्तों कि ये मैंने सोचा ये कट क्यों नहीं हो रहा है. ठीक है, एक्चुअल में देखो ये v ई रेज टू वी और माइनस ई वी रेज टू ई, ये ई रेज टू वी कट हो गया. तो ये जो कैंसलेशन नहीं हो रहा था, सो दैट वाज अ डाउट इन माय माइंड कि भाई इतना गड़बड़ वाला कैसे आ गया. ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ये टर्म और ये पूरा कट हो गया, ये है ही नहीं, खाली माइनस ई रेज टू वी माइनस वी इज देयर, बराबर ना. ये कट हो गया, यहाँ से ऑलरेडी कट हो गया. ठीक है ना, राइट. तो अभी ये जो हमारा माइनस है इन डिनोमिनेटर में, वो माइनस को भी आप अगर चाहो तो यू कैन टेक द माइनस आउट हियर एज वेल एज यू कैन टेक द माइनस ऑन द ऑपोजिट साइड. किसी भी साइड आप लेके आंसर, तो एज यू टेक द माइनस आउट हियर और माइनस ऑन दैट साइड, आवर आंसर अगेन विल डिफर from the what we say टेक्स्ट बुक गिवन आंसर. इसमें ये सब बहुत होता है कि हमारे टेक्स्ट बुक के आंसर से आंसर डिफर हो जाता है. सो ये सब ध्यान में रखना होगा. अभी आप सपोज मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो 1 प्लस ई रेज टू वी अपॉन ये जो माइनस को मैंने सपोज बाहर ले लिया. ठीक है, ई रेज टू वी प्लस वी dv, and that minus I take suppose on the this side. You know why?
क्योंकि ये साइड माइनस रखना थोड़ा इजी रहेगा, इस साइड को अभी इंटीग्रेशन करना बाकी है ना, दैट इज़ वाई। ठीक है ना, राइट। अभी थोड़ा ध्यान से देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में there is one formula ready made, nothing to do. Denominator's derivative is there in the numerator. Just see, derivative of the denominator is there in the numerator. देखो कैसे, e raised to v derivative e raised to v, derivative of v is 1। तो नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पूरा न्यूमरेटर में है दोस्तों, है कि नहीं? ओके, तो यहाँ पे भी हो गया, ये तो ऑलरेडी लॉग मॉड वाई है ही। ठीक है, राइट। तो अभी नेक्स्ट पेज पे मैं वो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर लॉग मॉड डिनोमिनेटर, दैट इज लॉग मॉड ई रेज टू वी प्लस वी, लॉग मॉड ई रेज टू वी प्लस वी, e raised to v plus v, that is log mod denominator, और दिस साइड इज माइनस log mod y, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, log c। ठीक है ना, और लेट अस से मॉड्यूलस ओनली, द रीजन इज ऑल मॉड्यूलस इज देयर नो। बाद में वो लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलस निकाल देंगे, प्लस और माइनस नो कंडीशंस टू लुक आउट। अभी क्या है, यहाँ से भी दो मेथड हो सकती है, दिस माइनस लॉग वाई अपोज इस तरफ ले लो तो प्लस लॉग वाई हो जाएगा, एंड लॉग प्लस लॉग विल बिकम मल्टीप्लीकेशन। देखो ये सब गड़बड़ होती है लिखने में, सो डोंट गेट कंफ्यूज, आपको जो लगे वो करो। यहाँ पर जो रख के करेंगे, देन दिस इज माइनस एंड प्लस विल बी लॉग ऑफ सी अपॉन वाई। ठीक है, सी अपॉन वाई, सब्ट्रैक्शन बिकम्स डिवीजन नो, and this side already is there log mod e raised to v plus v। अब दोनों साइड से log भी रिमूव कर दो, मॉड्यूलस भी निकाल दो, सो e raised to v plus v, e raised to v plus v is equal to c upon y। ठीक है, राइट। और अभी क्या करेंगे आप, v सब्सटीट्यूट करना होगा, व्हाट इज v एज्यूम्ड एज x अपॉन y, तो v की जगह पे आप x अपॉन वाई डाल दो। ठीक है, तो e रेज टू x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई इज इक्वल टू c अपॉन वाई। ठीक है, राइट। सो वैसे तो आंसर आ गया है, बट यू कैन टेक y ऑन दिस साइड। तो अगर y को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, y e रेज टू x अपॉन वाई प्लस x, because y will get cancel out, is equal to c। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर आ गया जनरल सॉल्यूशन, राइट। सो जैसे हमने ये आज सम किया ना दोस्तों, आज हमने कौन सा किया, 7th किया, 10th किया। 7th इज ऑफ द टाइप y अपॉन x, 10th इज ऑफ द टाइप x अपॉन y। नाउ इफ यू सी नो in this same exercise there is a sum number 11 to 15, they are based on the particular solution। तो particular solution में भी करना तो यही है दोस्तों, उसमें और एक्स्ट्रा क्या आने वाला है, हाँ, you have to find the particular solution by getting the value of c from the initial values given of x and y। आप देखोगे टेक्स्ट बुक ओपन करके 9.5 में, तो आपको x और y की वैल्यू लिखी हुई मिलेगी 11 to 15 नंबर सम के अंदर। कोई भी सम ले लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब सिमिलर टाइप के सम्स है। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे ही एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनरल सॉल्यूशन के बाद वो हमको क्या करना होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जाना होता है, डेट्स ऑल। बाकी सब तो कोई सिमिलर ही है। तो अभी देखो सपोज मैं 11 सम ले रहा हूँ, तो 11 सम में पहले तो जनरल सॉल्यूशन ही है x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और कंडीशन इज गिवन x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 1। ये हमको कंडीशन दिया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ये हमको दिया हुआ है। दिस वी विल यूज आफ्टर ऑब्टेनिंग जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, राइट। तो अभी इसमें से
पहले तो आप क्या करोगे दोस्तों, dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर दो, ठीक है। तो x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस सपोज नहीं रखना है तो क्या करेंगे, y माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको होमोजीनियस है वो शो करना है तो यू हैव टू डिवाइड दिस थ्रू आउट बाई एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कन्वर्ट इनटू वाई अपॉन एक्स फॉर्म, ठीक है, एंड देन शो दैट इट्स डिग्री 0. वी विल कन्वर्ट इनटू वाई अपॉन एक्स फॉर्म, बट आई एम नॉट शोइंग दैट इट इज़ ऑफ डिग्री 0. एग्जाम में ऐसा जनरली नहीं पूछते, ठीक है। 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, तो ये हो गया होमोजीनियस टाइप हो गया। और अभी आगे लेट करके होमोजीनियस की मेथड अप्लाई करेंगे, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, देयरफॉर y इज इक्वल टू वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स करके यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। सो द गिवन इक्वेशन इज, अभी मैं सीधा लिख रहा हूँ एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू द होल सम, ओके। तो गिवन इक्वेशन, तो डी वाई बाई डी एक्स के बदले हम क्या लिख देंगे, यहाँ से जो हमने आज तक पहले 3-4 सम्स में ऑलरेडी कर दिया हुआ है, दैट वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स विल बी डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स विल बी वी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी, ठीक है। अब वी को उस तरफ ले जाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, देन यू विल गेट अ जनरल सॉल्यूशन. आफ्टर गेटिंग द जनरल सॉल्यूशन you will have to get the particular solution, means value of c फाइंड करनी होगी, और वो वैल्यू ऑफ c आपको जो भी मिले वो c की जगह पे, जैसे इज इक्वल टू c है ना, तो c की जगह पे वो वैल्यू डाल दो, दैट्स ऑल. जस्ट फॉर इंस्टेंस सपोज कि भाई यहाँ पर मुझे करना है तो ये 1 1 यहाँ पे डाल दो, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो c की जो भी आंसर मिलता है ना वो c की जगह पे रिप्लेस कर दो, हो गया. दैट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है. तो फर्दर थिंग नाउ आई एम कीपिंग फॉर यू स्टूडेंट्स, होप दैट यू विल बी एबल टू डू ये माइनस बी करके, ठीक है, राइट. सो मेथड वाइज एक्चुअली दोस्तों हमारी अकॉर्डिंग टू करंट ईयर सिलेबस हमारी मेथड जो है ये वो कंप्लीट हो गई है इसमें, राइट. जो थर्ड मेथड जो हमको दिया हुआ है दैट इज अ linear differential equation is not there in this year's syllabus. So right now we will skip that exercise. That exercise is 9.6. तो 9.6 जो है वो हम skip कर देंगे, उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है ना. और 9.6 के बाद वाला जो टॉपिक है वो आ जाता है डायरेक्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है, ठीक है, राइट. So that miscellaneous exercise we will do, okay. So I think method wise I think all the problems, all the methods are done in this exercise. In the miscellaneous exercise we will do few more sums and then the chapter will be done. Hope you are understanding it and hope you are subscribed my channel. If you are not yet subscribed, please subscribe it, okay, and press the notification bell also, so that it will be quite easier for me. I am not a professional guy, okay students. मैं खाली आप लोगों के करंट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ही ये रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ. सो इज दैट क्लियर? फॉर योर betterment, better to subscribe. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye.